Okay, so with that, let's move towards our set 3. Now, once again, this is also from an actual CAT paper, CAT 2017, right? So the procedure is the same procedure we will follow. I'll first show you the data, then I'll show you the questions. You will try it on your own. I'll tell you the time frame. I'll tell you the difficulty level, overall difficulty level. I'll give you the required amount of time, but you will solve it on your own, and then we will solve it together. So this is set 3. It looks like a caselet. A caselet is a kind of question in which the data is given in a paragraph format, in the text format, right? Although the data will be kind of mathematical, but it looks like a paragraph. It looks like an essay. So this is the data. Take about 4 minutes to understand what is given. Take about 4 minutes to understand what is given, and then I'll then give you the time for the question. Take 4 minutes. Pause the video. Come back to me when you have the understanding. Okay, so I hope you have read the data by now. Let's look at the first question. How much did Sita receive in bank deposits in lakhs of rupees? Okay, pretty simple one-liner question, but it's not easy. I'll categorize it as moderate. Okay, so this is a moderate level question. Take about 2 minutes. Try to solve it on your own. Pause the video. Come back to me when you have an answer in your hand. Alright, so I hope by now you have tried to solve it and you must have reached to an answer. That's it. That's the first question. Let's move to the next question. Question: how many flats did Neeta receive? And it's a theta question. That means you don't have any options, but you are supposed to type in the answer. So pause the video for about 2 minutes. This is again a moderate level question. Pause the video for 2 minutes. Come back to me when you have an answer in your hand. Okay, so I hope by now you have tried to solve it, right? This was second question. Third question: how many gold coins did the old woman have? How many gold coins did the old woman have? Right? The new data is also there. The data says the value of the assets distributed among Neeta, Sita and Geeta was in the ratio 1:2:3, while the gold coins were distributed among them in the ratio 2:3:4. One child got all 3 flats and she did not get the house. One child other than Geeta got 30 lakhs in bank deposits. How many gold coins did the old woman have? This is the question. Okay, I would say this is moderate to difficult, and I would ask you to have 3 minutes to yourself and solve it on your own. Alright, I hope by now you have tried to solve it. This was question 3. Let's move to question 4. Yeah, the value, I think this is the same as the previous one, the distribution. The question is, how much did Sita get in bank deposits in lakhs of rupees? Again, it's a theta question. Moderate to difficult. You should have 3 minutes to yourself. Pause the video. Try to solve it on your own. Alright, that's it. Okay, so these are the 4 questions. Now, this was overall a moderate to difficult set. More or less inclining towards the moderate side, right? You can actually solve a couple of questions of this. This is something that you need to understand. If a set is difficult, okay, it won't all be difficult. पूरा का पूरा difficult नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे question difficult हो. There will be couple of questions जो सिर्फ एक बार की reading और एक बार की understanding के बाद आपको solve हो जाएंगे आपसे. So कई बार ये होता है, ये बातें हम हालांकि बाद में करेंगे कि CAT पेपर को कैसे attempt करते हैं. But many times you need to understand that अगर आप सेट में घुस चुके हो तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बाहर निकलोगे. अगर आप किसी नए घर में जा रहे हो जो आपको मालूम नहीं है कितने क्वेश्चंस हैं, कितने रूम हैं, कहां पर क्या है, ये नया घर या फिर नया घर है, जरूरी नहीं है आपके हर रूम को चेकआउट करके आओ. 2 रूम में जाओ, अगर आपने सही से आंसर कर लिया तो वहां से निकल जाओ, नए रूम में मत जाओ. एज सिंपल एज दैट. सो नाउ लेट्स ऑल ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. या एन ओल्ड वुमन हैड द फॉलोइंग एसेट्स. Rupees 70 lakh in bank deposits, so she has 70 lakhs. One house worth rupees 50 lakhs, so 50 lakhs का house plus 3 flats each worth 30 lakhs, मतलब 90 lakhs के flats. Certain number of gold coins each worth rupees 1 lakh. मतलब मान लीजिए उसके पास कुछ x नंबर के कॉइन्स हैं, तो x lakhs, मतलब टोटल उसके पास कितना है? 70 plus 50 120, 120 plus 90 210, so 210 lakhs plus x lakhs. इतना टोटल उसके पास प्रॉपर्टी है. ओके,
She wanted to distribute her assets among her 3 children, Neeta, Sita and Geeta. The house, any of the flats or any of the coins were not to be split. That is, the house went entirely to one child, a flat went to the one child and similarly a gold coin went to the one child. मतलब आप एक हाउस के 2 टुकड़े नहीं कर सकते. एक हाउस की जो प्रॉपर्टी है 50 लाख का घर जो है उसको 25-25 लाख नहीं कर सकते. हाउस देना है तो पूरा हाउस देना पड़ेगा, एक फ्लैट देना है तो पूरा एक फ्लैट देना पड़ेगा. दैट इज इट. ओके. Now, among the 3, Neeta received the least amount in bank deposits, while Geeta received the highest. The value of assets was distributed equally among the children as were the gold coins. इसका मतलब है कि गोल्ड कॉइन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. राइट? क्या लिखा है यहां पर? The value of the assets was distributed equally among the children. इसका मतलब है कि जैसे कि 3 फ्लैट्स हैं और कॉइन्स जितने भी हैं, जितने गोल्ड कॉइन्स हैं, ये एक एक बच्चे को सेम अमाउंट में जाएंगे. इसका मतलब गोल्ड कॉइन्स इक्वली बटा हुआ है ना, गोल्ड कॉइन्स इक्वली बटा हुआ है. इसका मतलब आई शुड अज्यूम 3x कॉइन्स. 3x. व्हाई? बिकॉज आई एम सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग्स 3. सबको मिलने वाला है x, है ना. तो आई एम सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक दिस, 210 प्लस 3x. तो इसको अच्छे से लिख देते हैं. टोटल प्रॉपर्टी जो है वो है 210 प्लस 3x lakhs. This is the total, right? Okay. Now यहां पर देखते हैं. Among the 3, Neeta received the least amount in bank deposits. नीता जो है वो least amount उसको बैंक डिपॉजिट में मिला है, while Geeta received the highest. So बैंक डिपॉजिट जो है BD, जो ये रहा 70 lakhs. BD में Neeta is the highest, sorry, Neeta is the least and Geeta highest, G को highest. ठीक है. The value of the assets were distributed equally among the children as were the gold coins. ठीक है. यहां पर आपको पूछा है how much did Sita receive in bank deposits? Okay. How will we solve it? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमें ये मालूम है कि टोटल जो है वो 210 प्लस 3x lakhs है. लेट मी गो टू अ ब्लैंक स्पेस. या इसका मतलब है कि हर एक चाइल्ड को नीता, गीता, सीता, अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर देता हूं तो 70 प्लस x ये मिल जाता है. सबको चीजें इक्वली मिली हुई है. इसका मतलब वैल्यू इक्वल है. तो सबके पास 70 प्लस x है. वो वैल्यू किस चीज के एक्सचेंज में मिली है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी को हाउस मिले, हो सकता है किसी को कुछ और मिले. करेक्ट. सो ये तो पता चल गया कि 70 का खेल है पूरा. 70 प्लस x, 70 प्लस x, 70 प्लस x. ठीक है. अब वापस आते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमें मिली हो. हमें ये बताया गया है कि नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट्स. अपने पास बैंक डिपॉजिट कितने हैं? 70 lakhs. इतना है 70, राइट. 70 lakhs बैंक डिपॉजिट अपने पास. किसी को लीस्ट मिले हैं, किसी को हाईएस्ट मिले हैं. ठीक है. ओके. तो अब हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, राइट. वी नो दैट एक हाउस जो है वो 50 लाख का है, 3 फ्लैट 30 लाख के हैं. सो लेट्स गो टू आवर यहां पर. चलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाउस जो है जो 50 लाख का है, हाउस जिसको भी मिला होगा 50 लाख का घर, उसको साथ में कैश 20 lakhs ही दे सकते हो आप. हाउस जो है जिसको मिला होगा उसको 50 लाख तो मिल रहे, तो इसका मतलब है कि उसको 20 lakhs मिला होगा. नंबर 1. सो ये एक होगा. इनमें से कौन पता नहीं. सो आई नो देयर इज समवन, मतलब किसी एक के पास 50 लाख है हाउस प्लस 20 lakhs कैश. कौन है अभी मुझे नहीं मालूम है. ओके. एक और कॉम्बिनेशन सोचिए 70 का. ये किसी का तो बन गया. बाकी 70 के साथ आप कैसे बना सकते हो? वापस आते हैं अपने टेबल. यहां पर 3 फ्लैट्स ईच वर्थ 30 lakhs. इसका मतलब अभी तक हमने किसी को फ्लैट नहीं दिया है. अभी तक हमने किसी को फ्लैट नहीं दिया है.
1.5 फ्लैट 1.5 फ्लैट तो नहीं दे सकते, सो ऑब्वियसली आप किसी को एक फ्लैट दोगे, मतलब कोई एक इंसान होगा जिसके पास एक फ्लैट, नीचे लिख देता हूं, एक फ्लैट, और किसी एक इंसान को 2 फ्लैट। जिसको एक फ्लैट दिया उसके पास 30 लाख है कैश, सॉरी फ्लैट की वैल्यू में, इसका मतलब है कि रिमेनिंग कितना होगा, 40 लाख कैश होगा, और जिसको 2 फ्लैट मिले उसको 60 लाख मिला हुआ है, इसका मतलब बाकी का 10 लाख जो होगा वो कैश में होगा। अब मुझे तीनों पता चल गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों कॉम्बिनेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए। कहां से शुरू किया था, हाउस से, जिसको 50 लाख का हाउस मिला होगा उसको कैश 20 लाख ही मिला होगा, सो दैट सम 70 लाख हो। चलो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मालूम है, क्या मालूम है, नीता रिसीव्ड लीस्ट, गीता रिसीव्ड हाईएस्ट, किसमें, बैंक डिपॉजिट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब लीस्ट बैंक डिपॉजिट में ये नीता है, 60 + 10 तो ये नीता है, मैं लिख देता हूं यहां पर 2 फ्लैट्स प्लस 10 लाख। गीता हाईएस्ट, कैश हाईएस्ट इसके पास है, 1 फ्लैट प्लस 40 लाख कैश, और सीता एक हाउस प्लस 20 लाख कैश, हाउस प्लस 20 लाख कैश। ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। करेक्ट। सो पहला क्वेश्चन, हाउ मच डिड सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट्स, देख लीजिए सीता का बैंक डिपॉजिट, सीता बैंक डिपॉजिट 20 लाख, तो अपना आंसर है 20 लाख, सी। करेक्ट। मॉडरेट लेवल था, इजी नहीं था लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं था, आसानी से सॉल्व कर सकते थे। दैट वाज द फर्स्ट। हाउ मेनी फ्लैट्स डिड नीता रिसीव, कितने फ्लैट्स नीता को मिले, नीता ये रही फ्लैट, उसके पास 2 फ्लैट है, सो अपना आंसर आएगा 2 फ्लैट्स। थीटा क्वेश्चन था, नो नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, अब इसमें कुछ नया है, क्या नया है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पैराग्राफ, ये पहले नहीं था। ओके, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीता सीता गीता वाज इन द रेशियो 1:2:3। अच्छा, इसका मतलब अब उन्होंने वैल्यू को 1:2:3 के रेशियो में बांटा है। ओके, टोटल वैल्यू क्या था, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू, 210 + 3x, उसको बांटना है हमें 1:2:3 के रेशियो में, 1:2:3। कैसे नंबर को आप 1:2:3 में बांट सकते हो, जो 6 का मल्टीपल हो, 6 के इजीली टुकड़े कर सकते हो, 1, 2 and 3। ओके, ये तो ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है, दिस इज ऑलरेडी 6 का मल्टीपल ना, 210, 35 × 6 ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है, इसको भी 6 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, सो वी हैव टू कन्वर्ट 3x इंटू 6 का मल्टीपल, मतलब जैसे कि 6y, तो मैं 3x की जगह पर अब से 6y यूज करूंगा, वाई, बिकॉज मुझे अब एक 6 का मल्टीपल चाहिए। सो नाउ माई टोटल इज 210 + 6y, 210 + 6y। ओके, अब वापस आते हैं यहां पर, वाइल द गोल्ड कॉइन्स जो 6y हैं, they were distributed among them in the ratio 2:3:4, 2:3:4। जो गोल्ड कॉइन्स है उनको हमने बांटा है 2:3:4 के रेशियो में। फिर से सोचो, कैसे नंबर को आप 2:3:4 के रेशियो में बांट सकते हो, जो 2 + 3 + 4 9 का मल्टीपल हो, है ना, जैसे 9 के टुकड़े करो 2, 3, 4, 18 के टुकड़े भी कर सकते हो 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ये जो 6y है इसको मुझे 9 का मल्टीपल भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 6 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। आपने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा, अगर कोई नंबर 6 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है तो वो नंबर 18 का मल्टीपल भी है।
करेक्ट। इसका मतलब है अब ये 6y नहीं है, यहां पर मैं करूंगा अब 18z, so this 6y turns into 18z, so अपना total turns into 210 plus 18z. Yes, so till now we have understood that the number of coins are 18z and the total assets are 210 plus 18z. We know one thing, that overall distribution is 1:2:3 and the gold coins distribution is 2:3:4. Okay, that means 18z coins को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किनके बीच में, नीता, सीता, गीता, so उनके पास गोल्ड कॉइन पक्का आने चाहिए 4, 6 and 8. ओके, 4, 6 and 8. तो चलो इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं. We know the total 210 plus 18z. करेक्ट. लेट्स से ये नीता है, सीता एंड गीता. टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन इज 1:2:3. मतलब किसी को 1/6, किसी को 2/6, किसी को 3/6 मिला है, राइट. लेट्स मेंशन इट समवेयर हियर. नीता is to सीता is to गीता is 1:2:3. सो नीता को मिला है 1/6 ऑफ दिस. सिक्स से डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस 18/6 इज 3z. ओके, 35 प्लस 3z. सिमिलरली यहां पर 2/6 मतलब 1/3, दैट इज 70 प्लस 6z एंड 3/6 मतलब हाफ is 105 प्लस 9z. नाउ यहां पर एक गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है कि जो 18z गोल्ड कॉइन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 2:3 रेशियो में. सो गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है 2:3:4. इसका मतलब किसी के पास 4z, किसी के पास 6z और बाकी बचा 8z. यही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. चलो, नीता के पास होना चाहिए 4z, लेकिन इधर तो 3z ही दिख रहा है. सो हम क्या करेंगे, 3z को हम चेंज कर देंगे. सो इसको मैं लिख सकता हूं 35 प्लस z, सॉरी 35, या फिर नीचे लिखेंगे सो दैट स्पेस अच्छे से यूज हो सके. 35, अगर मैं एक z माइनस कर देता हूं और इधर एक z प्लस कर देता हूं तो ये 4z हो जाएगा. अब सेटिस्फाई कर रहा है. इसको वैसे का वैसा रखो, ये सही है, ये सही है. इधर क्या करेंगे, 105, हमें एक z माइनस करना है तो इधर एक z प्लस करना पड़ेगा, प्लस 8z. ये भी सही है. 4, 6, 8. तो इसको हम मानेंगे, इसको हम मानेंगे और इसको मानेंगे. कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड द ओल्ड वुमन हैव. हमें गोल्ड कॉइन्स का पता करना है. ओके, ठीक है. वन चाइल्ड गॉट ऑल द 3 फ्लैट्स एंड शी डिड नॉट गेट द हाउस. एक बच्ची ऐसे जिसके पास तीनों फ्लैट, मतलब 90 लाख तो है ही है उसके पास. तो वो चाइल्ड कौन हो सकता है, आप देख ही सकते हो. किसके पास 90 लाख जितना अमाउंट हो सकता है, वी ओनली हैव गीता. सो गीता को ही मिल सकता है ऑल 3 फ्लैट्स. गीता ही है जिसको मिल सकता है ऑल 3 फ्लैट्स. इसका मतलब नीता या सीता में से किसी एक को, नीता या सीता में से किसी एक को एक हाउस तो पक्का मिला है, और वो कौन हो सकता है, सीता ही हो सकती है. सो सीता गॉट 1 हाउस फॉर श्योर, मतलब हाउस जो एक ही था 50 लाख का. इसका मतलब आगे बढ़ते हैं. वन चाइल्ड अदर देन गीता गॉट 30 lakhs इन बैंक डिपॉजिट. एक चाइल्ड ऐसे है जो अदर देन गीता जिसको 30 lakhs मिला है बैंक डिपॉजिट में. कौन हो सकता है, सॉरी चलो 30 lakhs क्या इसके पास कैश पड़ा हुआ है, 90 माइनस करोगे तो 15 ही बचेगा. 30 इसके पास कैश पड़ा होगा नहीं, 70 माइनस करोगे 50, 70 में से 50 माइनस करोगे क्योंकि हाउस 50 लाख का है तो 20 लाख ही बचेगा. मतलब 30 कैश इसके पास ही है, नीता के पास. नीता हैज 30 lakhs इन कैश. मतलब ये पार्ट 35 माइनस z, ये होना चाहिए 30. मैं यहां पर लिख रहा हूं नीता मस्ट हैव ओनली 30 lakhs in cash. That means 35 minus z is 30.
इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू 5, z इक्वल टू 5, मतलब ये 18z मतलब कितने हो जाएंगे टोटल कॉइन्स, 18 इंटू 5, 90 कॉइन्स बन जाएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन बी 90, करेक्ट, ऑप्शन बी 90 इज द आंसर। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन 3, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज देयर वाज अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे आप नंबर्स को अज्यूम करते हो ये बहुत मैटर करता है यहाँ पर, है ना। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन 4, सेम डेटा, हाउ मच डिड सीता गेट इन बैंक डिपॉजिट इन लाख ऑफ रुपीज, थीटा क्वेश्चन है। सीता को बैंक डिपॉजिट कितना मिला है, सोल्यूशन है अपने पास, ये रहा सीता का बैंक डिपॉजिट। देखिए हाउस तो 50 लाख का है, इतना मतलब कैश कितना मिला होगा 20 लाख, बिकॉज बाकी 6z तो कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन, सीता की बात चल रही है। सो सीता का कैश 20 लाख ही हो सकता है, दैट मीन्स वी हैव गॉट आवर आंसर, आंसर इज 20 लाख। राइट, आंसर इज 20 लाख। क्लियर है। सो ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट बट नॉट दैट डिफिकल्ट कि बिल्कुल ना हो। मैथ्स के साथ थोड़ा सा रिलेटेड था, रेशियोज काफी यूज हुए इसमें। सो ओवरऑल अ वेरी गुड सेट। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इफ यू डिसाइड टू सॉल्व इट, आई थिंक एटलीस्ट 2 or 3 questions you can definitely get, right, from the basic understanding of the whole set. Okay, so with that, let's move towards our next set. Okay, let's have a look at the next set. All right, so you can see the data on your screen, right? The data looks smaller in size, that means understandable. पहले एक बार समझ लीजिए, take about 2 to 3 minutes to understand what is given. Look at the table, understand what is missing, try to see how will you be able to find out the missing values, and resume when you are done. Alright, so I hope by now you have developed an understanding of the table or the whole data. First question, how many thin crust pizzas were to be delivered to party 3? Right? Easy to moderate level question. Okay, I think you should take 2 minutes and by then you should have your correct answer. So pause the screen, take 2 minutes, solve it on your own, come back to me when you are done. Alright, so I hope you have been able to find the correct answer. Let's go to the next question. How many normal cheese pizzas were required to be delivered to party 1? Okay, again, easy to moderate level question. Take about 2 minutes, not more than that. Try to solve it on your own, come back to me when you have the answer. Alright, so I hope by now you are done. This was question 2. Let's move to question 3. For party 2, if 50% of the normal cheese pizzas were of thin crust variety, what was the difference between the numbers of TEC and DEC pizzas to be delivered to party 2? So I would categorize this question as moderate. So try to take about 2.5 minutes, solve it on your own, come back to me when you have the answer. Alright, so I hope by now you have solved it. Let's go to the last question. Suppose that a TNC pizza costs as much as a DNC pizza but 60% of the price of a DEC pizza. A DEC pizza costs 50 rupees more than a TEC pizza and the latter costs 500. If 25% of the normal cheese pizzas delivered to party 1 were of deep dish variety, what was the total bill for party 1? Okay, I would say this is moderate to difficult, right? Not too difficult, but leaning on the moderate side. Take about 2.5 to 3 minutes maximum. Solve it on your own and resume the video when you are done. Okay, so I hope by now you have solved all 4 questions. Let me go to the data and let's understand it together. Alright, Funky Pizzeria was required to supply pizzas to 3 different parties. The total number of pizzas it had to deliver was 800. So this is good piece of information. That total is 800. Okay. 70% of which was to be delivered to party 3 and the rest equally divided between party 1 and 2. So this is also nice that we have the distribution of party 1, party 2 and party 3. This is 70%, so 560. Remaining 240 is equally divided, so 120, 120. Okay. This is 560. Good.
Yeah, pizzas could be of thin crust or deep dish. So that means pizza can be या तो thin crust or deep dish, T or D, and come in either normal cheese or extra cheese version. So that means once again, pizza can have two types: normal cheese, extra cheese. Okay. Hence there are four types of pizza: TNC, TEC, DNC, DEC. Okay. So one thing I wanted to understand, that total pizzas are 800. That means total thin crust plus total deep dish, they should be 800. Similarly, total normal cheese and total extra cheese, they should also add up to 800. 800 के ही दो अलग तरीके से डिवीजन करने हैं, ये समझ में आना चाहिए. Partial information about the proportion of T and NC pizzas ordered by the three parties are given below. आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पार्टी 1 का थिन क्रस्ट कितना था, किसमें, इन दोनों के बीच में. टी और डी में से टी कितना था. सिमिलरली नॉर्मल चीज कितना था, किन दोनों के बीच में, नॉर्मल चीज एंड ईसी के बीच में. सो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई है प्रोपोर्शन के नाम पे, एंड हमें मिसिंग वैल्यूज ढूंढनी है ना. तो एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट करते हैं. नाउ थिन क्रस्ट और डीप डिश का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, नॉर्मल चीज और एक्स्ट्रा चीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. सो लेट्स try to create the distribution. Let's say this is party 1, this is party 2, this is party 3. यहां पर मैं लिख रहा हूं थिन क्रस्ट और यहां पर डीप डिश. ये अपना एक टेबल बना. आपको टोटल पता है, यहां पर 560, यहां पर 120, यहां पर 120. एक दूसरा टेबल आपका बनना चाहिए सेम लाइन पे. पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, एनसी नॉर्मल चीज, ईसी एक्स्ट्रा चीज. पार्टी का टोटल सेम है. सो यहां पर 560, यहां पर 120, यहां पर भी 120. यहां इतना आपको मालूम है. नाउ व्हाट एल्स, कुछ डेटा दिया हुआ है प्रोपोर्शन के तौर पे. पार्टी 1 में 0.6 थिन क्रस्ट है, 0.55 पार्टी 2 में है और 0.375 टोटल में है. ओके, सो ये है 0.6, ये है 0.55 और टोटल ऑब्वियसली टोटल यहां पर 800 है, यहां पर भी टोटल 800 है. ये है 0.375. किसका, 800 का. चलो ये 0.6 किसका, 120 का. तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 72. ये 0.55 किसका, 120 का. 120 0.55 कितना हो जाएगा, 66. 0.375 किसका, 800 का. नाउ परसेंटेज पढ़ते वक्त आपको याद होगा 37.5 परसेंटेज हैपेंस टू बी 3/8, जो काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है एग्जाम में. दिस इज द प्रूफ that 3/8 जहां पर भी यूज हो, याद रखो 3/8 is either 37.5 or 0.375. So 0.375 is nothing but 3/8. कितना होगा, 300. So this value is to be 300. Okay, इसका मतलब this plus this is 300. This plus this is 300. तो 300 में से निकाल लीजिए इतना, तो ये कितना हो जाएगा, 138. 300 में से निकाल दिया तो कितना बन जाएगा, 162. है ना. ये सारे वैल्यूज मिले हैं तो ऑब्वियसली ये वाले वैल्यूज भी मिल जाएंगे. चलो 120 में से 72 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 48. 120 में से 66 तो 54. 560 में से 162, 560 में से 162, तो 560 में से 160 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 400. 400 में से आप दो और निकाल दीजिए तो 398 और ये टोटल कितना हो जाएगा, 500. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. नाउ पॉज द वीडियो, ट्राई टू फिल अप दिस होल टेबल. आपको इसके लिए 1 मिनट 1.5 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. ओके, सो यहीं पर पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फिल अप दैट सेकंड टेबल ऑल ऑन योर ओन. ओके, सो आई होप बाय नाउ आप लोगों ने इस टेबल को फिनिश कर दिया होगा. चलो एक साथ कर लेते हैं. 0.3, 0.65, 0.52. ओके, 0.3 यहां पर था, 0.3, 0.65, 0.52. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए 0.3 ऑफ 120 कितना होगा, 36. 0.65 ऑफ 560 का कितना होगा,
So 60% पहले निकाल दो, 60% मतलब 56 into 6, that is 336. 336 plus 28. 336 plus 36 plus 20, that is 364. And 0.52 of 800. 0.52 of 800 तो कितना हो जाएगा? 416. चलो पहले ये रिमेनिंग फिगर डाल दीजिए. 364 and 36, that is 400, है ना? तो ये बचेगा 16, ये 16 तो ये 104, ये 120, ये 36, तो ये कितना हो जाएगा? 84. ये 560, ये 364. पहले 560 में से 360 निकाल दीजिए, 200. 200 में से 4 और निकाल दीजिए, 196. 800 में से 416 निकाल दीजिए तो 384, है ना? 384. पूरा टेबल भर चुका है अपने पास. So now let's go back to the questions. How many thin crust pizzas were to be delivered to party 3? Party 3 के thin crust pizza. Party 3 के thin crust 162 is the answer. So 162, option B. आसान क्वेश्चन था. Question 2. How many normal cheese pizzas were required to be delivered to party 1? Party 1 का normal cheese. Party 1 का normal cheese. 16 pizza. 16. So we got the answer. Yeah, ये रहा. 16, C option. 16. Easy to moderate. कुछ खास नहीं था. आगे बढ़ते हैं. Question 3. For party 2, if 50% of the normal cheese pizzas were of thin crust variety, what was the difference between the number of TEC and DEC pizzas to be delivered to party 2? ध्यान से. 50% of normal cheese pizza were of thin crust. नॉर्मल चीज पार्टी 2 में जितने थे उसका 50% थिन क्रस्ट थे, तो 50% डीप डिश होंगे. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टीईसी एंड डीईसी पिज़्ज़ास टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी 2? ओके, अगर आपने डेटा को अच्छे से समझा है तो यहां पर आ जाइए. पार्टी 2 में 50% ऑफ नॉर्मल चीज मतलब 50% ऑफ 36. सो बेसिकली वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 36 एनसी पिज़्ज़ास हैं उसमें से 18 होंगे डीएनसी और बाकी होंगे टीईसी, सॉरी टीएनसी, इसी नहीं. में से 36 से 18 होंगे डीएनसी और बाकी होंगे टीएनसी. तो अगर आपको ईसी वाले पिज़्ज़ास ढूंढने हैं, ईसी, सो ऑब्वियसली आपको टोटल डी में से 18 निकालना पड़ेगा नॉर्मल चीज, और टोटल टी में से भी 18 निकालना पड़ेगा. मतलब बेसिकली दोनों में से सेम ही नंबर माइनस कर रहे हो आप. दोनों में से सेम ही नंबर माइनस कर रहे हो. अगर मैं आपको बोलूं 20 माइनस 10, आंसर होगा 10. और अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों में से दो निकाल के माइनस करो तो भी आंसर 10 आएगा ना. 18 माइनस 8. अगर मैं बोलूं दोनों में से 3 निकालो, 17 माइनस 17. तो आपको बेसिकली वो पूछ रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, टी एंड डी का डिफरेंस. सो ऑब्वियसली डिफरेंस कितना आएगा? 66 माइनस 54, दैट इज 12, है ना? 54 निकाल दिया तो 12 बचेगा. करेक्ट? लॉजिक समझ में आया? 18 माइनस करके निकालना, मतलब 66 में भी 18 निकाल दो, 54 में भी 18 निकाल दो और फिर सब्ट्रैक्शन करो. तो मैं बोलता हूं कि माइनस करने की क्या जरूरत है? अगर दोनों में से सेम ही नंबर को माइनस कर रहे हो तो मत करो और डिफरेंस निकाल लो. डिफरेंस कितना आ रहा है? 12. तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 12. ऑप्शन बी. राइट? आसान नहीं था, थोड़ा सा कैची. सो आई वुड से इजी टू मॉडरेट. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट. सपोज दैट अ TNC पिज्जा कॉस्ट्स as much as DNC पिज्जा. सो TNC is equal to DNC. But 60% of the price of a DEC pizza, मतलब 3/5 of DEC. Okay, DEC. Now a DEC pizza cost 50 rupees, 50 more than a TEC pizza, and the latter cost 500. मतलब basically TEC आपको दे दिया 500. सो DEC 50 ज्यादा 550. इसका मतलब है TNC DNC मिल जाएगा उसका 60%. कितना होता है 60% 550 का? 60%
550 का कितना होगा 330। सारे पिज्जा की कॉस्ट अब हमें मिल चुकी है। ओके, पूछा गया है नाउ if 25% of the normal cheese pizzas delivered to party 1 were of deep dish variety, what was the total bill for party 1? 25% of the normal cheese pizzas were delivered to party 1 were of deep dish variety. नॉर्मल चीज 25% डीप डिश वाले थे पार्टी 1 में, तो चलो पार्टी 1 में चलते हैं। लेट्स गो बैक टू आवर डेटा। यस, पार्टी 1 की ही बात चल रही है, पार्टी 1। ओके, सो पार्टी 1 की बात चल रही है। आपको क्या बोला है कि भाई 25% ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जा वर ऑफ डीप डिश वैरायटी। नॉर्मल चीज का, सो मैं यहां पर ये स्पेस यूज करूंगा। जो नॉर्मल चीज पिज्जा है कितने हैं 16, उसमें से 25% मतलब 4 डीप डिश वैरायटी वाले थे, तो बाकी के 12 मतलब 75% कितने होंगे थिन क्रस्ट वैरायटी के। यहां तक क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया? ओके, सो इनको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम DNC, और इनको हम क्या बोलेंगे TNC। ये हमें DNC TNC पता चले। ओके, ठीक है। टोटल मेरे पास पार्टी 1 में टी कितने आ रहे हैं, टोटल 72। तो अगर मैं टोटल टी में से TNC माइनस कर दूं, मतलब थिन क्रस्ट नॉर्मल चीज, तो मुझे थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज पता चल जाएंगे ना। टोटल थिन क्रस्ट में से नॉर्मल चीज वाले थिन क्रस्ट माइनस कर दे तो एक्स्ट्रा चीज वाले थिन क्रस्ट मिल जाएंगे। तो कितने हुए 72 में से आप 12 निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा 60, TEC 60। अगर मुझे TEC मिल चुका है, अगर मुझे DNC मिल चुका है तो DEC भी मिल जाएगा। सो टोटल T में से माइनस किया था हमने। ओके, नाउ टोटल D में से DNC माइनस कर दीजिए, सो आपको DEC मिल जाएगा। टोटल D 48 माइनस 4 तो 44। चारों पिज्जा पता चल चुके हैं। DNC TNC 4 12, DNC TEC 44 60, DNC TNC 4 12। सो अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास। यही था ना? हाँ, सो DNC 4, TNC 12, DEC 44, TEC 60। सबका कॉस्ट तो पता ही है। चलो पार्टी 1 का कॉस्ट निकालना है, सबका कॉस्ट पता है अपने को। DNC कितने का है? DNC है 330, सो 4 into 330। TNC कितने का है? सेम 330। DEC कितने का है? 550। TEC कितने का है? 500। सारे नंबर्स ढूंढ लीजिए। चलो ये 330 कॉमन निकाल सकते हैं ना, सब में से 330 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 330 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये? या तो फिर काम करते हैं 110 कॉमन निकाल लेते हैं इन तीनों में से। तो इन तीनों में से 110 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? दिस इज 3 into 110, so 12 plus 12 into 3 36 plus 44 into 5 220 plus 60 into 500 that is 30,000। यहां तक क्लियर है? 110 ब्रैकेट में 12 प्लस 36 प्लस 220 प्लस 30,000, ठीक है। इनको सम कर दीजिए। ये 48 प्लस 220 268 इंटू 110 प्लस 30,000। मैं अगले पेज पे करता हूं। 110 इंटू 268 प्लस 30,000। चलिए 268 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम जानते हैं कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14 कैरी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, पीछे एक 0। सो 30,000 प्लस 29480
दैट इज 59480. इसका मतलब है हमारा आंसर में मिल चुका है 59480 ऑप्शन ए, राइट. सो दिस वाज अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट उतना डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट की तरफ इंक्लाइन था, राइट. सो दैट वाज सेट 4. आई होप कि आप लोग मेरे साथ अभी पेस को समझ रहे हैं. इफ आई एम गोइंग टू स्लो, you are able to fasten up your pace. If I'm going too fast, you are able to pause the videos at critical time and you are able to learn, right? So we will continue learning this. Thank you for watching this session. In this session we have seen 4 questions from CAT 2017 paper which were of overall moderate to difficult level. So पहली बार आप लोगों ने difficult level questions देखे हैं. Do not judge yourself from your ability to solve or not solve these questions. These are just for your understanding as of now. You are beginning your preparation, so don't test yourself. Learn everything, right? Thank you for watching.